Good morning everyone. Welcome to the lecture of Design of Steel Structure. In the last lecture we have started a new chapter, foot over bridge, and we have seen some of theory. We have also seen design steps for designing this foot over bridge. In today's lecture we are going to start an example how to calculate, how to design a steel foot over bridge. So let's start this example. Design a steel foot over bridge for a following data, and data is span of the bridge is given 24 meter, width of a walkway 4 meter, flooring RCC slab 110 mm thick, live load is 5 kilonewton per meter square, floor finish is 0.75 kilonewton per meter square, use N type lattice girder, assume a suitable data if necessary, and take Fy 250 MPa and rho M0 1.10 partial safety factor, right? So this data is given for designing a steel foot over bridge. So as per steps, the step number 1 is a calculating geometry of a lattice girder. So first of all we have to find out the depth of a girder. So depth of the girder is L by 8. So here our L, length of the bridge, is 24 meter. So we will put a value of L here and 24 by 8. So we will get a depth of a girder, that is 3 meter. Panel length. So for calculating a panel length there is an equation L by 8. So again this is also 3 meter. Length of the verticals will be 3 meter and length of the diagonal can be find out by this Pythagoras niyam. So that is under root 3 square plus 3 square. So length of the diagonal will be 4.24 meter. So this type of elevation will be there, and this is a plan. So width of a walkway is 4 meter, that is given in an example. So cross beam will be 3 meter. Now step number 2, that is the design of a cross beam. So first of all, for calculating for designing of a cross beam, first of all we have to calculate a total load that will be on a beam. So first of all we will calculate a dead load due to a slab. So again slab thickness is 110, so 25 into 110, that means 2.75 kilonewton per meter square is a dead load. Floor finish is given in example, that is 0.75 kilonewton per meter square, and again live load is also given, so that is also 5 kilonewton per meter square. So total load will be on a beam, that will be a 8.5 kilonewton per meter square. So width of the slab carries by a one cross beam, that is 3 meter. So load per meter length will be 8.5 into 3, because 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लोड पर मीटर लेंथ मिल जाएगा. तो वो कितना मिलेगा? 25.5 किलोन्यूटन पर मीटर. अब हम लोग now assume self weight of a beam, that is 0.5 kilonewton per meter. So total UDL will be a 26 kilonewton per meter, right? Now factor UDL. So उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फैक्टर्ड UDL मिल जाएगा, वो हो जाएगा 39 किलोन्यूटन पर मीटर. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट कैलकुलेट करनी है. मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट कितनी आएगी? तो मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम लोग अगर देखें यूडीएल लोड है और सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? WL² by 8. सो हियर लेंथ ऑफ L जो होगा वो हम लोग क्या लेंगे? लेंथ ऑफ अ वॉकवे लेंगे, ठीक है? तो W है हमारा 39 जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, L है 4 जो वॉकवे की विड्थ है, और उसको पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर और हमें क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट 78 किलोन्यूटन इनटू मीटर. अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम फैक्टर्ड शियर फोर्स. सो अगेन शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है WL by 2.
सो W है 34, L है 4/2, तो हमें कितना मिल जाएगा 78 किलो न्यूटन। अब हमें देखना है रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। सो ZP मतलब कि हमें ZP फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर से हम लोग कोई सेक्शन सिलेक्ट, ट्रायल सेक्शन सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ZP की ज़रूरत पड़ेगी। तो ZP का इक्वेशन हमें IS 800 पेज नंबर 139 पे दिया हुआ है। तो ZP का इक्वेशन है MP इंटू गैमा M0 अपॉन FY, अगेन MP। तो MP है हमारा 78 किलो न्यूटन, ठीक है, मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट। FY है 250 एंड गैमा M0 1.10 हमें दिया है इक्वेशन के अंदर। तो हमारा ZP क्या हो जाता है, ZP की वैल्यू है 343.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ZP हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमारे पास ZP की वैल्यू है 343, तो हमें ISLB सिलेक्ट करना है। वो हम कहाँ से करेंगे, तो स्टील टेबल या फिर आप IS 800 में पीछे की साइड पे आपको दिया है, टेबल्स दिए हैं, उसके ऊपर से आपको ट्रायल सेक्शन सिलेक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो आपके पास ZP की वैल्यू है, ठीक है, 343। तो आपको 343 के अराउंड में जो भी ISLB है उसके नियर बाय ZP जो होगा उसकी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे IS 275 सिलेक्ट किया, ISLB 275। तो ये सेक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो मैं स्टील टेबल में से ले लूँगी, जो जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो IS 275 है तो उसकी डेप्थ 275 mm है, उसका ZP कितना है 443.9। हमें ZP ऐसे सिलेक्ट करना है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग ZP की वैल्यू है उससे थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है, थोड़ा मतलब 100 का 100 या 50 जितना ज़्यादा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा 343 था ZP, और हमने जो सिलेक्ट किया है उसकी ZP की वैल्यू कितनी है 443, ठीक है। तो ZP है 443.9 mm3, BF है 140 mm, TW की वैल्यू है 6.4 mm, TF है 8.8 mm एंड R की वैल्यू है 14, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेक्शन क्लासिफिकेशन करना है, मतलब ऑक्सिलरी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो ऑक्सिलरी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पेज नंबर 18 IS 800 2007 के अंदर टेबल दिया है, ठीक है। वो टेबल के ऊपर से हम लोग सेक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये सेक्शन कौन सा है, प्लास्टिक है कि कौन सा सेक्शन है। तो हमें सेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी, फ्लैंज एंड वेब की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी जो वैल्यू, हमारा जो सेक्शन है वो प्लास्टिक है कि कौन सा है। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी के लिए 250 अपॉन FY रेज़ टू 1/2 है, और FY की वैल्यू 250 है, तो हमारा ऑक्सिलरी की वैल्यू 1 हो गई। अब आगे, अब हम लोग देखेंगे फ्लैंज की वैल्यू। तो फ्लैंज की इक्वेशन होता है B अपॉन TF। ये सारी वैल्यू आपको वो पेज नंबर 18 में टेबल नंबर 2 में से ही मिल जाएगी। तो फ्लैंज है आपका 70, TF है 8.8, मतलब आपकी जो वैल्यू है 7.95, तो वो 9.4 ऑक्सिलरी से कम होनी चाहिए। तो हमारे पास 9.4 E है वैल्यू, तो उससे कम होनी चाहिए, तो हमारा सेक्शन प्लास्टिक है। मतलब 7.95 वैल्यू आई, दैट मीन्स 9.4 E से कम है, तो हमारा फ्लैंज प्लास्टिक है। अगेन हम लोग वेब के लिए करेंगे। तो वेब के लिए करने के लिए हमारे पास D अपॉन TW है। तो वेब के लिए D कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो 275 टोटल डेप्थ है, उसमें से हम लोग 8.8 इंटू 2 और 14 इंटू 2 माइनस कर देंगे, मतलब कि थिकनेस ऑफ ए फ्लैंज एंड R वो 2 हो जाएगा, उसको माइनस कर देंगे, उसके डिवाइड बाय TW करेंगे। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें देखना है कि इससे कम होनी चाहिए, मतलब कि वो वैल्यू हमारी यहाँ 35.84 आ रही है, और एज पर दैट टेबल हमारा इक्वेशन के टेबल के हिसाब से 84 E से कम होना चाहिए, मतलब कि हमारा ऑलरेडी कम है। दैट मीन्स हमारा सेक्शन जो है वो प्लास्टिक है। अब स्टेप नंबर 3 है चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। सो चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी के लिए अगेन हमारे पास इक्वेशन है डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ MD इज इक्वल टू
बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गैमा एम ज़ीरो। सो ये इक्वेशन आपको क्लोज नंबर 8.2.1.2 में से पेज नंबर 53 में से मिल जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, पेज नंबर 53 में से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो उसमें से हमारा बीटा बी है वो 1 आएगा फॉर अ प्लास्टिक सेक्शन के लिए। जेड पी, तो जेड पी हम लोगों ने जो सेक्शन सिलेक्ट किया था उसका जेड पी कितना था वो लेंगे। एफ वाई की वैल्यू है 250 और गैमा एम ज़ीरो है 1.10। ठीक है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें एम डी की वैल्यू मिल जाएगी 100.70 किलो न्यूटन इंटू मीटर। जो हमारे ऑलरेडी मोमेंट जो हमने कैलकुलेट की थी मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट उससे ज़्यादा है, मतलब कि हमने जो ISLB सिलेक्ट किया है सेक्शन वो सेफ है। ठीक है, तो मोमेंट कैपेसिटी का चेक हो गया। अब हम करेंगे चेक फॉर शियर कैपेसिटी। तो चेक फॉर शियर कैपेसिटी के लिए भी अगेन हमारे पास इक्वेशन क्लोज नंबर 8.4 पेज नंबर 59 पे दिया है, जिसमें इक्वेशन है VD इज इक्वल टू AV अपॉन FY इंटू W अपॉन √3 गैमा एम ज़ीरो। अब AV क्या है, तो एरिया है। तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास 275 क्या है, डेप्थ है, D है 275 और 6.4 थिकनेस है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा इंटू एफ वाई। तो एफ वाई है 250 √3 इंटू गैमा एम ज़ीरो, तो वो आ जाएगा 1.10। मतलब हमारा VD हो गया 230.94 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना है 0.6 VD, मतलब कि हमारी जो वैल्यू है, हमने जो शियर फोर्स फैक्टर शियर फोर्स फाइंड आउट किया था वो ये हमारी जो VD हमें मिला है उसके 0.6 VD से ज़्यादा, वो जो वैल्यू मिली थी उससे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी हमारी मतलब कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 0.6 VD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। VD हमारा था 230.94 एंड 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें मिल गया 138.56। मतलब कि हमें जो वैल्यू मिली है वो हमारी शियर वैल्यू जो मिली थी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी मैक्सिमम शियर फोर्स वैल्यू कितनी मिली थी 78 किलो न्यूटन, और हमारा यहाँ कितना हो रहा है 138.56 किलो न्यूटन। दैट मीन्स कि हमारी जो वैल्यू थी उससे ज़्यादा है, मतलब कि वो सेफ है। ठीक है, तो इतना तो पार्ट हो गया हमारा सेक्शन सिलेक्शन का। अब हम लोग डिज़ाइन पार्ट में जाएंगे। तो डिज़ाइन में कैसे होता है, तो सबसे पहला स्टेप्स, ये 4 स्टेप के बाद हमारा क्या है, डिज़ाइन ऑफ लेटिस गर्डर्स। तो यहाँ पे हमें एन टाइप की लेटिस गर्डर्स सिलेक्ट करने के लिए बोला था एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल में दिया था कि यूज़ एन टाइप ऑफ अ लेटिस गर्डर। दैट मीन्स कि हमें डिज़ाइन कौन सी करनी है, एन टाइप की। तो अब हम लोग करेंगे डिज़ाइन ऑफ एन टाइप लेटिस गर्डर। तो उसके ऊपर कितने लोड्स आएंगे वो कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप नंबर 5 है हमारा लोड्स ऑन एन टाइप लेटिस गर्डर। तो सबसे पहले डेड लोड ऑफ अ स्लैब आ जाएगा। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो 275 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 4/2, क्योंकि लेंथ कितनी है हमारी 4 है। तो डेड लोड ऑफ अ स्लैब कितना आ गया 5.50 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद आएगा फ्लोर फिनिश। तो फ्लोर फिनिश हमें दिया था 0.75, अगेन उसको भी 4/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो गया 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं सेल्फ वेट ऑफ अ ट्रस, तो वो है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब हमारा टोटल डेड लोड हो रहा है 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब उसको हम फैक्टर्ड कर देंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो है 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा हो गया डेड लोड। तो सेम एज हम लोग अगेन लाइव लोड भी करेंगे, तो उसको फैक्टर्ड कर देंगे। तो फैक्टर्ड लाइव लोड हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 10, मतलब 15 किलो न्यूटन पर मीटर। और हमारा टोटल यूडीएल हो जाएगा 10 प्लस ये 1.5 15, मतलब कि 25 किलो न्यूटन पर मीटर। राइट, नाउ स्टेप नंबर 6 है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस इन अ ट्रस मेंबर। तो अगेन हम लोग ट्रस मेंबर जो है उसकी फिगर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 एंड L8 तक। ठीक है, अप टू L8 आएगा। राइट,
क्योंकि हमारे स्पान ऑफ अ ब्रिज है 24 मीटर और हमारे पास दोनों के बीच के डिस्टेंस है 3 मीटर, राइट। L0 और L1 के बीच का डिस्टेंस है 3, L1 एंड L2 के बीच का 3। अगेन हाइट भी है हमारी 3 मीटर। तो हमारा टोटल ट्रस मेंबर ऐसे होगा डिज़ाइन उसकी। अब हम उसकी इन्फ्लुएंस लाइंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ओके अब हम लोग देखेंगे फोर्सेस इन अ टॉप कॉर्ड। तो कैसे आएगा, तो अगर हम फॉर U0 U1 ले तो उसके लिए कैसे आएगा, हमारे पास ये इक्वेशन है A इंटू एल माइनस ए अपॉन एल इंटू एच। तो ये हमारे टोटल स्पान की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 8 स्पान है और ईच स्पान की लेंथ है 3 मीटर, तो हमारे टोटल स्पान की लेंथ हो जाएगी 24 मीटर। सो ये एग्जैक्टली 24 मीटर है। अब मैं ये वाला पोर्शन ले रही हूँ, मतलब कि U0 U1। तो U0 और U1 के बीच में A कितना आएगा, 3 आएगा। L है हमारा लेंथ 24, सो अगेन 3 इंटू 24 माइनस 3 अपॉन 24 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि हाइट है हमारी 3। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारी वैल्यू मिलेगी 0.75। सो अगेन अब मैं करूँगी नेक्स्ट U1 U2 के लिए। तो U1 U2 के लिए मैं करूँगी तो मेरा कितना हो जाएगा, ये वैल्यू A की वैल्यू हो जाएगी 6। तो क्या हो जाएगा मेरा हाइट HT, तो 6 इंटू 24 माइनस 6 अपॉन 24 इंटू 3, तो उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 1.5। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कैलसी लेके। अगेन मैं U2 U3 के लिए करूँगी तो उसके लिए मेरे कितनी लेंथ हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, ठीक है। तो 9 माइनस 24 और 9 इंटू 24 माइनस 9 अपॉन 24 इंटू 3 करूँगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1.875। अगेन मैं U3 U4 के लिए कैलकुलेट करूँगी तो U3 U4 के लिए कैलकुलेट करने के लिए मेरा हो जाएगा 12 इंटू 24 माइनस 12 अपॉन 24 इंटू 3, मतलब कि वैल्यू 2 मिल जाएगी। सो मुझे सारे पॉइंट्स की वैल्यू मिल गई, तो मुझे इन्फ्लुएंस डायग्राम मेरा हो गया। अब मैं उसके ऊपर लोड कैलकुलेशन करूँगी। तो मुझे PU0 U1 अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसका एरिया फाइंड आउट करूँगी। तो जैसे U0 U1 तो यहाँ पे है, उसका ये पोर्शन है, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, तो 1/2 इंटू 24 इंटू 8.75 इंटू 26.25। तो ये 26.25 क्या था, जो हम लोगों ने टोटल फैक्टर्ड UDL फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो मेरा PU0 U1 कितना हो गया, 275.625। सेम मैं PU1 U2 करूँगी तो उसका हो जाएगा 1/2 इंटू 24 इंटू 1.5, क्योंकि ये वैल्यू हमें कितनी मिली थी 1.5, और उसके साथ मेरा फैक्टर्ड UDL हो जाएगा, वो है 26.25। सेम PU3 U2 U3 करूँगी तो उसके लिए मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू 24 इंटू 1.875, बिकॉज मेरा यहाँ पे 1.875 मिला था, तो उसकी वैल्यू मेरी हो गई 590.625 किलो न्यूटन। और PU3 U4 तो उसके लिए हो जाएगा 1/2 इंटू 24 इंटू 2, तो उसके लिए हो जाएगा मल्टीप्लाई करूँगी मैं 26.25 से, जो कि है हमारा टोटल फैक्टर्ड UDL, और उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 630 किलो न्यूटन। तो ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, फोर्सेस इन अ टॉप कॉर्ड मेंबर्स, ठीक है। सबसे पहले हमने हाइट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन फाइंड आउट की। वो इक्वेशन था हमारे पास A इंटू एल माइनस ए अपॉन एल इंटू एच, ठीक है। हमने सारे अलग अलग मेंबर्स के लिए हाइट कैलकुलेट की। उसके बाद हाइट मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया, फोर्सेस इन दैट मेंबर कैलकुलेट किया। तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, उसके साथ टोटल UDL को मल्टीप्लाई किया, तो हमें PU0 U1 मिल गया, PU1 U2 मिल गया, PU2 U3 मिल गया और PU3 U4 मिल गया। तो ये हमें टॉप कॉर्ड मेंबर्स के फोर्सेस मिल गए। तो सेम एज हमें अगर फोर्सेस इन बॉटम कॉर्ड मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या हो जाएगा, ये टॉप कॉर्ड मेंबर्स थे जो टॉप कॉर्ड मेंबर्स, तो वो क्या थे,
कंप्रेशन में थे, और हमें अगर बॉटम कॉर्ड मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो वो क्या हो जाएगा, टेंशन में आ जाएंगे. मतलब कि the forces in a top chord member and bottom chord members between a parallel diagonal will be equal in a magnitude but opposite in a nature. मतलब कि जो P L1 L2 होगा वो माइनस में हो जाएगा P U0 U1. ठीक है. वैसे P L2 L3 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अगेन वो भी माइनस में हो जाएगा. तो जो हमारे पास टॉप कॉर्ड मेंबर्स के वैल्यू फाइंड आउट किए गए हैं उसकी ऑपोजिट मैग्नीट्यूड में हो जाएगी. ठीक है. तो गाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन ऑफ अ टॉप कॉर्ड मेंबर्स. तो तब तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है ये लेक्चर में तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर.